In the last about 5-6 years, कई जगह पे prices double हो गए हैं, some places it is tripled. House is the one of the most important asset that anyone has. A lot of people looking out for properties immediately when the COVID wave was over. If I was investing in Gurgaon, actually has 100 times more investors than Delhi. इतने लोग हैं दुबई में या जा रहे हैं या खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, मतलब Dubai is like the next Gurgaon to me, yaar. Dusra, it is one of the safest cities in the world. I agree. The medical infrastructure there is one of the best in the world. In the last about 5-6 years, prices have completely changed. The entire real estate market has completely changed. कई जगह पे prices double हो गए हैं. Some places it is tripled. Sometimes we notice कि ज़्यादा नहीं बढ़े और कई जगह 4-5 गुना भी हो गए. So the question right now in everybody's mind is कि क्या जो बढ़ना था बढ़ गया, or is the boom starting and then do we have maybe the next 10 years in front of us? So we decided that we're going to have this healthy discussion with an expert, none other than Shoaib himself, who's been doing this for more than 20 years. He's been with Tata, DLF, and he's done like he's been involved in hundreds and hundreds of transactions. तो इनसे समझते हैं कि भाई गुड़गांव में इनके हिसाब से क्या चल रहा है. साउथ दिल्ली का पर्सपेक्टिव तो हमारे पास है ही, तो हम डिस्कस कर लेंगे. अच्छा, दूसरा क्या, क्योंकि हमें दोनों को शायद 20-20 साल से ज़्यादा हो गए हैं. Right. So we will know what happened in the past in similar situations and then what to expect. Okay, so let's get started. Welcome, Shoaib. Thank you, Ashutosh, for having me here. So, Ashutosh, if you recall our journey for the last 20 years, so we both have seen, the market is cyclical. It goes up, then there are certain factors, certain headwinds which, the market has to face, like the 2008 Lehman Brothers crash and all those things. So the market stabilizes, goes down also, and then there is another cycle, and then it will go up again. So COVID was one such factor. When COVID happened, so the market got a unexpected shock, and nobody had any clue when will it get over, how the property market will behave post COVID. Nobody had any clue. ऐसा लगता था अब सब कुछ हमेशा के लिए बंद रहेगा, लेकिन ये भी शायद एक फैक्टर है that some places never came down, some places went down drastically. अगर हम कोविड ना देखें और भी पुराना टाइम देखें, 10-20-50% तक भी कई जगह प्राइसेस करेक्ट हुए हैं. And then some other places it just corrected by 10-20%. Some places did not correct. Right. So I think there are pockets. There are pockets. I totally agree. There are pockets. And one thing which COVID, made everyone understand, house is the one of the most important asset that anyone has. Where you stay, that turned out to be the most important asset in their portfolio. So residential, that's why it went up. Yes, Okay. that's why residential went up. So whoever, because we were confined to our homes, so whoever was staying in suppose a 3-bedroom house or a 4-bedroom house, they decided, this is the best investment that I'm going to do for myself and my family. So everybody, if they were staying in a 10-year-old house, they decided to move to a newer place. A 3-bedroom person moved to a 4-bedroom or a 5-bedroom place. So that kind really led a lot of people looking out for properties immediately when the COVID wave was over. Okay, so what now? अभी तो rates तो बहुत बढ़ गए. So if we look at it, थोड़ी markets compare करते हैं, let us just compare Gurgaon, maybe Dubai also, because we both are into Dubai also now. Right. And of course South Delhi. तो गुड़गांव में अगर देखें, let's say from 2019, क्योंकि 20 में कुछ शायद एक temporary dip भी आया होगा. From 2019 to end of 2025, how much is the price increase? It doesn't have to be exact, So just I'll roughly. tell you, Ashutosh, it will vary. In certain pockets, the prices have tripled. So, you remember we jointly worked on a transaction and wherein it was a Camellia apartment, which was sold for 23 crores. The current valuation stands around 80 crores for that particular apartment. So roughly 3 times. 3 times. So that is, it's unique to that particular project, that particular ecosystem, the DLF Golf Links ecosystem. But other than that, there are other properties where minimum the property prices have doubled since in the last 5 नहीं, years. अगर हम देख लेते हैं थोड़ा सा, जैसे DLF phase 1 देखें, I think that is the fastest growing. That has Right. gone up by more than 3 times. Yes, the land valuations have gone up almost. They have almost tripled. The floors and as well as the independent houses
2.5 times to or tripled there in this same time frame. और दूसरे कुछ सुशांत लोग और दूसरे एरियाज अगर देखेंगे तो शायद 3 गुना की जगह 2.5 गुना हो गया होगा. ठीक है, सो 2.5-3 गुना इज 2.5 to 3 times इज व्हाट गुड़गांव हैज सीन जनरली स्पीकिंग. कोई एक आधी पॉकेट नीचे भी होगी, ज्यादा भी होगी, बट लेट अस जस्ट से दैट. ओके फाइन. सो if we look at South Delhi, so if I was selling a house, I remember for 14.5 crores in 2019, it has not even doubled. I would say 2019 से अभी तक it won't sell. If he was selling it today, it won't sell for 29. It will probably sell for 26, maybe 26 and a half. You know, the one of the reasons for this is the kind of buyers who are buying in South Delhi. This is my take. You are a better judge. You have been in South Delhi market. The buyer psyche of a South Delhi person and the buyer psyche of a Gurgaon person. Gurgaon, you will see a lot of first-time buyers. You know, they are working. Has been a lot of job creation in Gurgaon. A lot of people are coming from, you know, different towns of North India. They are moving into Gurgaon. So there are a lot of first-time buyers. So because of that, the demand has been very consistent and it has been on the rise since then. As far as I understand, and you are a better judge on that, South Delhi, these are the people who have already been staying in South Delhi. Now they are, you know, upgrading or, you know, going to a newer house. Those. Yeah, that of the course. Influx of the first home buyers is more towards Gurgaon. हाँ, मतलब यहाँ That's why the prices. So, the major difference I would say is एक तो साउथ दिल्ली बहुत सैचुरेटेड मार्केट है, कोई यहाँ से तो यानी कि प्लॉट्स खाली हैं, अभी बनेंगे. वेयर एज इन गुड़गांव वी स्टिल फाइंड दैट मे बी इन DLF फेजेस ऑल्सो, सुशांत लोग ऑल्सो, या लैंड्स लेके बिल्डर नए नए प्रोजेक्ट लाते हैं, 25 स्टोरी प्रोजेक्ट्स विद थाउजेंड्स ऑफ फ्लैट्स, यू नो. तो दिल्ली में वो सब नहीं है, सप्लाई थोड़ी सी कंस्ट्रेंड है. पर एक ना फैक्टर ये भी होता है, इफ आई वॉज इन्वेस्टिंग इन गुड़गांव, एक्चुअली हैज 100 times more investors than Delhi, because Delhi में सारा सेल्फ यूजर है, right? इसलिए बहुत ज़्यादा बढ़ता भी नहीं है, घटता भी नहीं है. More of end user market. ऑलमोस्ट सारी एंड यूजर है. कोई इन्वेस्टर भी होगा मेरे जैसा, वो एक आधा फ्लैट ले लेगा कि किसी एंड यूजर को बेच देंगे. ऐसा नहीं है कि वो 5 फ्लैट्स बुक कर लेगा कि जी हम 20% देंगे और उसी में बेच देंगे. वो कोशिश यहाँ कोई नहीं कर रहा आज की डेट में. गुड़गांव में वो होता है, इट्स अ हेल्दी मार्केट, किसी भी बढ़ती हुई मार्केट में होता है. लेकिन टाइमलाइन भी ना गुड़गांव में 4 से 5 साल है. सो इन्वेस्टर इज समबडी हु इन्वेस्ट एंड वो 2 साल 3 साल मे बी 4 साल बाद एग्जिट कर जाता है. इन साउथ दिल्ली बिकॉज यू नो यू स्टार्ट अ बिल्डिंग, इट विल बी रेडी इन 18 months मैक्सिमम. तो वो उसके पास, इन्वेस्टर के पास वो टाइम होराइजन नहीं है अपने पैसे को जल्दी रोटेट करने का. और इतना स्ट्रक्चर्ड भी नहीं है, मतलब यहाँ पे एक इंडिविजुअल बिल्डर के पास जाओगे वो 20% में डील ही नहीं करेगा पहले तो. Exactly. वो बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं. बट सो इट्स नॉट अ वेरी इन्वेस्टर मार्केट. तो पर एक फ़र्क ये भी है कि मुझे याद है 2019 में शायद लाख रुपए के आसपास का रेट होता था DLF के फेजेस में. आज अगर 3-4 लाख रुपए है तो 1 लाख था, यहाँ 5 लाख था. आज वहाँ 4 पहुँच गया या 3-3.5 पहुँच गया, और यहाँ पे 8 के आसपास है. जैसे GK जैसे एरिया की बात करें, 8-9 लाख है, वहाँ पे 3-4 लाख है. तो अभी भी देखा जाए तो गुड़गांव में to reach Delhi there is a big gap. Yes. So as a long term investor शायद किसी के माइंड में आएगा यार एक प्लॉट लेके छोड़ना है मुझे, मैं ऐसा करता हूँ गुड़गांव में लेके छोड़ देता हूँ, क्योंकि he can still compare to Delhi. मेंटली हिल से यार मैं 4 लाख का ले रहा हूँ, यहाँ 9 है, यहाँ पे भी 12 हो जाएगा तब तक. तो अगर वो 4 से 8 भी आ गया तो पैसे डबल हो जाएंगे. सो वन वुड मे बी थिंक लाइक दैट. आई थिंक उस टाइम पे तो बहुत लोगों ने ऐसा सोचा होगा. बिल्कुल. दूसरा, इतने पैसे कहाँ हैं. तीसरा, यहाँ प्लॉट्स मिलते नहीं साउथ दिल्ली में. आप एज ए इन्वेस्टर आते हो, आप कहते हो जी 500 गज के 10 प्लॉट ले दो, हमारे पास बहुत पैसे हैं. मुंह मांगे पैसे ले लो, प्लॉट ही नहीं मिलते. राइट. तो आप करोगे क्या? राइट. तो वो सिचुएशन गुड़गांव में बेटर है. गुड़गांव में मिलते हैं, अभी भी मिलते हैं. सो पीपल गो एंड इन्वेस्ट बिकॉज फॉर सिंपल रीजन कि वहाँ पर चीज़ें तो मिलती हैं. बिल्कुल बिल्कुल. और गुड़गांव ना एक्सपैंड हो रहा है. दिल्ली एक्सपैंड होके कहाँ जाएगा? दिल्ली के तो सेटेलाइट टाउन से इधर नोएडा आ जाएगा, उधर फरीदाबाद आ जाएगा, इधर गुड़गांव आ जाएगा. गुड़गांव तो एक्सपैंड हो रहा है. गुड़गांव के डिफरेंट एरियाज हैं. द्वारका एक्सप्रेसवे, you know, that's a very promising corridor. The kind of appreciation that Dwarka Expressway has seen. So no doubt, गुड़गांव द्वारका एक्सप्रेसवे यहाँ पे स्कोप ज़्यादा है कि शायद पैसे बढ़ सकते होंगे. पर दिल्ली में ये है कि ये गिरेगा नहीं, हमें पता है, क्योंकि सारा सेल्फ यूज़र मार्केट है. कोई आप ऐसा तो है नहीं कोई घर में रह रहा है, आज रेट बढ़ गया तो कहता है मैं बेच देता हूँ, या अब मैं नहीं बेचूंगा, अब मैं घर नहीं खरीदूंगा. भाई उसको चौथा बेडरूम चाहिए, वो लेगा. और साउथ दिल्ली वाला वो यहीं लेगा. लेकिन द मेन पॉइंट राइट नाउ इसका थोड़ी सी कहीं करेक्शन भी हो रही है गुड़गांव में, क्योंकि कहीं मैंने अफवाहें सुनी है. दिल्ली में तो ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, यहाँ तो प्लॉट मिल नहीं रहे, यहाँ तो थोड़ा रेट बढ़ा के लेना पड़ता है, महंगे लेना पड़ता है कुछ लेना है तो पहले से. पर कुछ है ऐसा? देखो, आई डोंट सी देयर इज एनी करेक्शन. व्हाट हैज बीन ऑब्जर्व्ड रिसेंटली,
till last year the markets were they Crazy. were growing crazy. What has happened, that correction has not happened. What has happened is there has been a shift in the apartment sizes. So I'll tell you, everybody was making a 3-bedroom apartment close to 3,000 square feet, a 4-bedroom है. apartment close to 4,000 square feet. ठीक Now है. the minimum ticket size of these properties, say on a golf course road, a 3-bedroom in a new launch was touching 10 crores. A नहीं, एक 4-bedroom, सेकंड समझ लेते हैं इसको, थोड़ा एग्जांपल है. समझ लो 30,000 स्क्वायर फीट रेट था गोल्फ कोर्स रोड पे, और कोई 3,000 फुट का 3 बेडरूम बनाता था तो 9 करोड़ का हो गया. 9 करोड़ का हो गया. ठीक है. तो अब ये हो रहा है बिकॉज वो 9 करोड़ बहुत ज़्यादा लोगों के पॉकेट में, वो उनके बजट में नहीं आ रहा. तो डेवलपर्स व्हाट दे हैव डन, एंड दिस हैज़ बीन सीन इन द रीसेंट लॉन्चेस, व्हाट एमआर डिड, व्हाट बिरला डिड, and there are a couple of more developers who are planning their projects in the next 4-5 months. What they have done is, उनका जो 3-bedroom 3,000 स्क्वायर फीट, जब हर कोई 3,000 स्क्वायर फीट बना रहा था, अब वो वापस 2,400 स्क्वायर फीट पे वापस आ गए हैं. सो लेट अस से, मैं समझ गया आप क्या कह रहे तो हो. रेट में करेक्शन नहीं कर रहा है कोई. पर एक 3 बेडरूम जो 9 करोड़ का होता था वो 7-7.5 करोड़ का हो गया. बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन प्राइस कम नहीं हुआ है, पर स्क्वायर फीट कम नहीं हुआ है. प्राइस कम नहीं हुआ है. ओके. तो जो लोग ये कह रहे हैं ना करेक्शन आ गया है गुड़गांव में या प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, वो बिल्कुल सही नहीं है. ऐसा कहीं भी किसी भी पॉकेट में नहीं हुआ है. नो बट आई कैन सी वेयर दे आर आल्सो कमिंग फ्रॉम, क्योंकि एक 3 बेडरूम 9 करोड़ का होता था, अब 3 बेडरूम अगर 7.5 8 या 7 का मिल रहा है तो वो कहेंगे देखो रेट तो कम हो गया. रेट कम हो गया, बट वो एक्चुअल में रेट कम नहीं हुआ है. रेट कम नहीं हुआ है, वो सिर्फ टिकट साइज चेंज हुआ है. एंड जो फर्स्ट टाइम बायर है ना गुड़गांव में, वो 2,500 स्क्वायर फीट के 3 बेडरूम से भी शुरू करने को तैयार है. वो तो मार्केट इतना अच्छा चल रहा था, द डेवलपर्स वर हैड दिस माइंडसेट, अगर 3,000 स्क्वायर फीट बना के बेटर आरओआई मिल रहा है तो 3,000 स्क्वायर फीट का बना के बेचेंगे. एंड मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था. बट अब वो माइंडसेट चेंज हो रहा है, एंड डेवलपर्स जो है वापस गए ड्राइंग बोर्ड पे, एंड दे हैव रीडिज़ाइन देयर प्लान्स, और सब अब 500-600 स्क्वायर फीट छोटे अपार्टमेंट बना रहे हैं जो पहले बड़े अपार्टमेंट्स बन रहे थे. तो एक तो ये देखने को मिल रहा है गुड़गांव में. लैंड प्राइसेस तो कहीं नीचे आ ही नहीं रहे. जो ये कहते हैं कि गुड़गांव में डाउनटर्न आ रहा है या कोई प्राइसेस करेक्शन हो रहा है, प्लॉट्स में तो मैंने सुना भी नहीं. कोई नहीं सुना. हाँ. बिल्कुल भी नीचे एक भी प्लॉट सस्ता नहीं मिल रहा है. जो मार्केट में रेट एस्टैब्लिश्ड है उसी रेट पे मिल रहा है. इसकी अगर हम और बेसिक्स में जाएं, आई थिंक सबको समझने में मज़ा भी आएगा ये कि हुआ क्या, कोविड के बाद रेट बढ़ क्यों गए. इसका मेन रीजन मेरे हिसाब से था कि लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई ऑन ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो एवरीवेयर द रेट्स वेंट अप, इवन इन यूएस, इवन इन कनाडा, एवरीथिंग. कनाडा बाय द वे हैज़ कम डाउन अ लॉट, सो दैट आल्सो रेजेस क्वेश्चंस कि यहाँ तो नहीं हो जाएगा. लेकिन अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव उसमें जाके देखें कि इंटरेस्ट रेट कम किए, मनी सप्लाई बढ़ी, लिक्विडिटी बहुत बढ़ गई, आपके पास आज 10 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आ गए जी, क्या करें, चलो जी प्रॉपर्टी डाल लो. तो लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया गुड़गांव में, नोएडा में, दिल्ली में, जहाँ पे भी. कुछ लोगों ने दुबई में जाके कर लिया. अब ये ऐसा तो है नहीं कि मनी सप्लाई कम कर रहे हैं. लाइक गवर्नमेंट्स एक्चुअली विल नेवर रियली रिड्यूस मनी सप्लाई फॉर अ सिंपल रीजन, उससे कॉन्ट्रैक्शन आती है इकॉनमी में. बिल्कुल. और नंबर्स खराब होते हैं. और जब नंबर्स खराब होते हैं, एम्प्लॉयमेंट कम होती है, वोट नहीं मिलता. ठीक है. सो दिस इज द हार्ड ट्रूथ बेसिकली. एंड लाइक रिसेंटली, आई थिंक कल परसों की बात है, 25 बेसिस पॉइंट्स कम किया ना, तो इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कम ही किया है. अभी अगर थोड़ा सा स्लो डाउन आ जाता है तो फिर से वो इंटरेस्ट रेट डाउन कर देते हैं. इंडिया की अच्छी बात यह है कि हमारी इन्फ्लेशन बहुत लो है. यूएस में एक अलग पंगा है. राइट. यूएस की इन्फ्लेशन बहुत हाई है. इंडिया के साथ ना एक एडवांटेज जो क्या है कि हमारी ना पॉपुलेशन अब हमारा एक तरह से एसेट भी है. अब फॉर एग्जांपल नॉर्थ इंडिया के आप किसी शहर को पकड़ लो, फ्रॉम कश्मीर टू यू कम डाउन टिल बिहार, यू गो डाउन टिल राजस्थान. अगर किसी के पास पैसे हैं, उसे अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, उसे नेशनल कैपिटल में प्रॉपर्टी चाहिए, तो वो दिल्ली आएगा, गुड़गांव जाएगा या नोएडा जाएगा. तो लॉट ऑफ पीपल इवन स्टेइंग इन स्मॉलर टाउन्स ऑफ लाइक आगरा, जयपुर, चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला, दीज बेल्ट, दे आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन साउथ दिल्ली, एंड दे आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन गुड़गांव. एंड दे आर न्यूली गेटिंग रिच. हाँ. अब हिंदुस्तानी अमीर हो रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, तो व्हाई नॉट इंप्रूव योर लाइफस्टाइल. और वहाँ पे उनको अभी वो एमिनिटीज़ नहीं मिल रही हैं जो यहाँ पे दिल्ली में मिल रही हैं. प्लस जिसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, उसको अगर ट्रैवल करना होता है, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, उनके बिजनेस सेटल्ड हैं, लखनऊ में अपनी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, रह रही हैं वहाँ पे लखनऊ में रहते हैं, बट वो आएंगे, दुबई जा रहे हैं, एक हफ़्ता गुड़गांव रुकेंगे, फिर दुबई जाएंगे, वापसी में आएंगे, फिर एक हफ़्ता रुकेंगे. सो दे हैव वेल मेंटेन्ड हाउसेज either in South Delhi or in Gurgaon or some of them in Noida as well.
वो इसको सेकेंडरी होम नहीं, एक सेकंड बेस की तरह यूज कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उनके घर में दे विल हैव ऑल द फैसिलिटीज, दे डोंट कैरी देयर आई वुड से देयर क्लोथ्स इन देयर सूटकेस। एक पूरा घर यहाँ पे एस्टैब्लिश्ड है उनका, जिसको वो यूज करते हैं, मे बी लाइक साल में 3-4 महीने यहीं पे रह रहे होते हैं। सो जो दिल्ली एनसीआर में इन्फ्लक्स जो टायर 2 और टायर 1 सिटीज़ से आ रहा है, टायर 2 सिटीज़ से आ रहा है, वो भी यहाँ के प्राइसेस को ऊपर लेके गया है। राइट, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ एनआरआईज आर आल्सो पुटिंग मनी बैक इन इंडिया, क्योंकि बाहर अब आपकी सिटीजनशिप के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको वापस भेज देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो लगता है कि यार अपने देश में, मतलब आप इंडियन हो, इंडिया में तो यू कैन ऑलवेज बी देयर, तो लगता है कि यहाँ पे अपना एक बेस हो। आई थिंक टू सम डिग्री एक प्रेस्टीज सिंबल भी है कि मेरा अपना घर है दिल्ली में या इंडिया में या जहाँ पे भी, मतलब एनआरआईज का सेंटिमेंट पिछले 4-5 साल में टोटली चेंज हुआ है। जो नहीं लेते थे यहाँ पे, नाउ एवरीबडी वांट्स अ हाउस हियर। सबका ये है कि एक तो अच्छा घर हमें इंडिया में बैक होम रखना ही है। और इंडिया इंप्रूव कर रहा है। हाँ, इंडिया देखो हम यहाँ रहते जो हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दिल्ली एनसीआर I में हो just रहा hate है। the pollution. Like really, I really want to run away from here every November till January maybe, and maybe I will. I say this every year. फिर मैं कहता नहीं बहुत डील्स चल रही है, अभी नहीं जा सकते। थोड़े दिन दम घुटने दो, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, आपने अभी दुबई बीच पे मेंशन किया, ऐसा नहीं है कि ऑलमोस्ट मेरे तो हर डील में या हर किसी ना किसी क्लाइंट से बात करते करते दुबई बीच में आता है, और मतलब इतने लोग हैं दुबई में, या जा रहे हैं या खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, मतलब दुबई इज लाइक द नेक्स्ट गुड़गांव टू मी यार। एक्चुअली क्या हुआ आशुतोष, पोस्ट कोविड पीपल रियलाइज्ड दैट दुबई इज़ नॉट वेरी फार फ्रॉम इंडिया। 3-3.5 घंटे की फ्लाइट है। दूसरा, इट इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड। आई एग्री। द मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देयर इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सो आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो कोविड में दुबई शिफ्ट हुए थे और फिर वापस ही नहीं आए। दे रियलाइज देयर हेल्थ केयर सिस्टम, देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, नो, दे हैंडल्ड द लॉकडाउन आल्सो वेरी वेल बाय द वे। अभी सिर्फ एक तो हमारा इन्फ्लक्स आ रहा है, उनको यूरोप से भी बहुत ज्यादा इन्फ्लक्स आ रहा है, जिसको टैक्सेस बचाने वो वहाँ पे चला जाता है कि चलो भाई टैक्सेस। दुबई के ना 2-3 रीजंस हैं। एक तो सेफ्टी सिक्योरिटी अनमैच्ड। अगर वहाँ पे आप जाओगे और कोई आपको बंदा है जिसकी 1,000 करोड़ की भी नेटवर्थ है या 10,000 करोड़ की भी नेटवर्थ है, वो पर्सनल सिक्योरिटी रख के नहीं चलेगा। वो आराम से चलेगा वहाँ पे, उसको पता है वो सेफ है। ट्रैफिक बिहेव्स एवरीथिंग, सो इट्स लाइक अ, जैसे यूरोप में या यूएस में आज की डेट में क्राइम बहुत है, बट इट्स लाइक एन अमेरिकन सिटी विदाउट द क्राइम। एग्जैक्टली, एंड वो कहते हैं ना, I would even say लग्जरीज ऑफ द वेस्ट एंड द कंफर्ट्स ऑफ द ईस्ट। सो वो सारी चीजें वहाँ पे परफेक्ट मैच हो रहा है। दुबई इज एवरीथिंग दैट वी वांट साउथ दिल्ली टू बी। एग्जैक्टली, ठीक है, धुआं भी नहीं है। लेकिन व्हेन यू लुक एट इट एज एन इन्वेस्टमेंट, आई थिंक दुबई में बहुत सारी ऐसी पॉकेट्स हैं जहाँ बहुत ओवर सप्लाई आने वाला है 2026 में, 27 में, 28 में। इनफैक्ट आई ऑल्सो वांटेड कि वहाँ कुछ इन्वेस्टमेंट को एक्सप्लोर किया जाए, कुछ किया जाए। आई एम वेटिंग एंड सो आर अ फ्यू ऑफ माई क्लाइंट्स, वी आर ऑल टुगेदर वेटिंग कि चलो कुछ होगा, करेक्शन होगा या कुछ अच्छा आएगा, ले लेंगे। आई हैव नॉट डिस्कस्ड दिस विद मेनी पीपल, आई डोंट थिंक वी हैव आल्सो डिस्कस्ड। व्हाट डू यू थिंक? थोड़ा आ रहा है? I visited Dubai, we visited thrice in the last 6 months. आप तो कर रहे हो, डील्स भी कर रहे हो ना? We are working for developers in Dubai and we are selling their properties in India. So I would say, right, like you rightly said, there are certain pockets which have a promising future also. There are certain pockets where there is an oversupply and a lot of supply is going to come. Reason being the projects, their handovers are जैसे coming. JVC है ऑलरेडी, काफी मुझे तो बहुत ओवर क्राउडेड सा लगा वो, और भी वहाँ सप्लाई आ रही है। बिल्कुल। So maybe that would be one जहाँ पे मुझे डर लगेगा शायद इन्वेस्ट करते हुए। Not a bad area as such, it's a good area, gentry अच्छी है, lot of Europeans live there, तो दुबई में ना 2-3 चीज़ें जो वर्क कर रही हैं। एक तो सेफ्टी सिक्योरिटी, दूसरा टैक्सेशन सिस्टम। कैपिटल गेन्स टैक्स ही नहीं है। आप प्रॉपर्टी लो, आप प्रॉपर्टी बेचो, वहाँ की गवर्नमेंट आपको कोई टैक्स नहीं लगाती। द पीपल हु हैव मेड दुबई एज देयर होम, देयर इज नो इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स तो है ही नहीं। सो दीज थिंग प्लस वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एमिनिटीज़ और वो सारी चीज़ें तो हैं ही। तो इसलिए लॉट ऑफ इंडियंस आर इन्वेस्टिंग देयर। नाउ योर रोल एंड आवर रोल इज़ टू गाइड पीपल ऑन हाउ टू डू द राइट इन्वेस्टमेंट थ्रू द राइट चैनल्स इन दुबई। क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, वहाँ पे 120 नेशनलिटीज़ के लोग खरीद रहे हैं। सो पीपल आर बाइंग स्टूडियोज ऑल्सो, जिसका 1.5 करोड़ का बजट है वो भी दुबई में जाके प्रॉपर्टी खरीद रहा है। तो 2 करोड़ स्टडी किया था, ये स्टूडियो और 1 BHK की ही ओवर सप्लाई है। विलास तो अभी भी स्केर्स हैं। हाँ, विलास, टाउन हाउसेज, उनकी बहुत डिमांड है। सम विलास आर ब्रो, दे आर लाइक 200 मिलियन दिरहम इन दिस प्लेस, जो अपना एमिरेट्स हिल्स वगैरह में।
Right. Amazing area though. I mean, Right, that's right. better than golf links, you know. Right. And even the new communities that are coming, they are they are comparable to any world बना रहे class हैं, हाँ. location across the world. I mean, this is for sure. Dubai has done something unimaginable and they're doing very well. But शायद उन्होंने भी प्लान नहीं किया था इतने लोग आ जाएंगे. अभी जब मैं लास्ट वहाँ गया इतना ट्रैफिक था, ऐसे लगा यार गुड़गांव से दिल्ली आ रहा हूँ. इसीलिए अब वो लोग क्या कर रहे हैं ना, they have already announced that they are shifting the airport. So the next corridor of development will be the Dubai South, where MR and other developers, they are buying land, they are launching projects, villa, townhouses, few apartments also. So they want to create two centers, two hubs. Like right now, downtown and Business Bay, they were the prime areas. Everybody wanted to be there. So now new pockets are coming up. So one has to, before investing, I always advise my clients, आप चलो दुबई, विल शो यू द प्लेस, विल मेक यू अंडरस्टैंड. बहुत बड़ा शहर नहीं है, ठीक है, छोटा सा शहर है. आप 2-3 दिन में पूरे दुबई को समझ जाओगे, कहाँ पे क्या आ रहा है और कितनी सप्लाई आ रही है. हम सब वी विल बी एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. उस हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट ऐसे करें जहाँ पे फ्यूचर में एक तो राइट डेवलपर होना चाहिए. देयर आर so many developers in Dubai. आपने कभी नाम भी नहीं सुने होंगे. And they are launching projects and they are getting sold also. And there are so many projects and some of these developers, without taking any names, वो कहते हैं जी आप कमीशन ज़्यादा ले लो, 7%, 8%, ये वो. मैं 7-8% कमीशन, 10% कमीशन दे रहे हो. तो वो कोई तभी देता है यार जो कोई गड़बड़ होती है, ठीक है. एनीवेज, कटिंग अ वेरी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई थिंक दुबई में मुझे ज़्यादातर पॉकेट्स में ओवर सप्लाई लग रही है अपार्टमेंट में, विलास वो लग रहे हैं. एक फाइनल क्वेश्चन है मेरा आपसे. अभी आपको 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने हो, ठीक है, वेयर वुड यू इन्वेस्ट और इन व्हाट प्रोपोर्शन? यू कुड मेक एन एग्जांपल ऑफ 100 इफ यू वांट टू इंक्लूड मोर प्लेसेस, जैसे साउथ दिल्ली, गुड़गांव, दुबई, सब कुछ करना हो आपको. और इफ यू हैड ओनली 10 टू इन्वेस्ट मे बी, which place would you choose and why? So as we discussed earlier, there are certain pockets. Like if I have to invest in Gurgaon, I'll invest on Dwarka Expressway. There is a huge potential which is yet to be realized for that region. So I would rather invest there. If I have to invest in Noida side, I would buy land. इतना बढ़ गया द्वारका एक्सप्रेस वे, यू फील? अभी भी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से या गोल्फ कोर्स रोड से आप रेट्स कंपेयर करो, बहुत रीजनेबल है. कितना फर्क है? जो गोल्फ कोर्स रोड पे जो नए लॉन्चेस हैं, जो अपार्टमेंट्स हैं, दे आर क्लोज टू 35,000 रुपीज अ स्क्वायर फीट. द्वारका एक्सप्रेस वे पे द न्यू लॉन्चेस आर रेंजिंग समवेयर बिटवीन 16,000 to 25,000 रुपीज अ स्क्वायर फीट. सो एवरेज, the other day you were there at one of the project launches. So they have come out with 21,350 rupees a square feet. So Dwarka Expressway still has not touched the price points of Golf Course Road or. So if you were to invest 10, you would put 10 in Dwarka Expressway? If I have to, it's a very person to person choice. No, what would you do? I would bet more on land anywhere in any of these growth corridors, because as they say, कोई नई ज़मीन आ नहीं रही है, जो है वो है. So apartments तो आ रहे हैं. So either I will buy a plot of land somewhere near the upcoming airport. Somewhere I will buy a plot of land there. Upcoming airport, the Jewar airport. So there the prices are still, they are लाख रुपए के आसपास है. हाँ, close to 1 lakh rupees a square yard. And these are gated townships. Developers are developing those townships. And real estate का एक उसूल है, be in real estate, be invested for the longer run. So if I have to invest, I would either buy land there on the Yamuna Expressway in any of these gated townships from these developers, or maybe I would buy a piece of land somewhere on the towards the Sohna side. So Sohna is also seeing has also a lot of potential. There are already developers from Gurgaon who are developing Sohna, and Sohna is just 20 minutes drive from main Gurgaon with the new highways and the new पहले दिल्ली से देखते थे, now people see it from Gurgaon. Yeah, so Sohna में land prices अभी भी बहुत reasonable हैं. वहाँ पे अभी भी 1.25 लाख रुपए गज में आपको plots मिलते हैं. So that is one corridor, and because there's a lot of development happening on that side also. The Delhi-Mumbai Expressway, they are connecting it from Sarai Kale Khan till the connectivity in Sohna, and it will be, so if you are taking the Delhi-Mumbai Expressway from Sohna, you can reach Sarai Kale Khan in 20-25 minutes. Really? Yes. Wow. So that expressway, the last stretch is getting constructed. So
I foresee that potential there as well. So I would rather invest in land. But अगर मुझे rental कमाना है, I would rather come to you and ask you get me a South Delhi floor and because यहाँ पे rent के लिए रुकना नहीं पड़ता, immediately rent हो ये जाता देखो साउथ दिल्ली ऐसा है कि अगर आप साउथ दिल्ली में इन्वेस्ट करते हो ना तो इट्स लाइक एन FD, है. Fixed नीचे deposit. नहीं होगा. वो तो पर for sure. ऊपर भी ऐसे कोई ये नहीं है कि आपको लगे भाई 5 साल में डबल हो जाएगा, वो नहीं होने वाला. But rental अच्छा आता रहेगा. Rental, I mean, so look, if I was to invest in South Delhi, I would just buy a plot and leave it, or I would buy a builder floor before it gets started, From the start. and then maybe sell it once it's ready, Right. you know, and wait for 2 years by the time it is ready and everything, and maybe pay some capital gain on it and take my profits and then reinvest. क्योंकि बिल्डर जब वैल्यू ऐड करता है उसका कुछ पैसा, जैसे 100 रुपए की लैंड लेता है, 20 रुपए की कंस्ट्रक्शन करता है, तो उसकी कॉस्ट अगर 120 है मोटा मोटा, ही सेल्स इट फॉर अराउंड 140. Yeah. So similarly, अगर मुझे 20 रुपए नहीं आएगा profit, I'll probably get 15 rupees profit. This is without the appreciation, by the way. Okay. Now if the land appreciates from 100 to 120, तो मेरी return 40% भी हो सकती है. Exactly. ठीक है? So I would rather play that game, but that's because And I faster understand turn this. around. 18 महीने में बन जाएगा जो है. But yeah, holding a builder floor long term, I sell builder floors, but I don't think that is a great idea कि आप लेके 10-20 साल रख लो, वो पुराने हो जाते हैं, कोई ऐसा फ़ायदा उसमें आता नहीं है. But for living it is great. I mean, I personally I have access to all the cities. I can go and live anywhere, Gurgaon, Noida, Dubai, whatever. You know, मैं दिल्ली में ही रहना चाहता हूँ. चाहे कितना भी धुआं हो, I love the greenery here. I love the culture here for whatever reason, you know. And I know a lot of people जिनको ये सूट करता है. Gurgaon is definitely also amazing now with all the new things that have come up. Dubai is just next level. Maybe I would have 2 houses. So similarly, अगर मैंने 10 लगाने हो तो मैं क्या करूँ कि मैं यहाँ एक फ्लोर ले लूँ कोई बिल्डर से और उसको भेज दूँ जब रेडी हो जाएगा. Maybe I would put like 6-7 here and maybe 2-3 I would put in Dubai. You mentioned Sona. I have not studied that market. Maybe I study that and maybe I would do that. पर 10 और कमा लो और 10 वहाँ भी लगा दो, 10 वहाँ भी लगा दो. That's the right thing. Okay. So this was basically our first take on the whole thing. Maybe we will sit again and do a follow-up video on this in maybe a month, 2, whatever. Right. Let's see how the markets shape up and we'll keep you updated. Thank you, Shoaib. Thank you, Ashutosh. Thanks for having me here. You're welcome.